Hi, welcome back to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. So, if you have not seen my last video on RFID disorder, please go ahead and check and like and subscribe my channel if you have not subscribed my channel, and press the bell icon so that you can know about my videos and also my knowledge on psychopathology. Okay, so in my this video, I will talk about anorexia nervosa, symptoms of anorexia nervosa, what causes anorexia nervosa. It is also an eating and feeding disorder. So in my this series of YouTube channel, I was talking about eating and feeding disorder. In before I talked about somatoform disorder. So I also talk about diagnosis and treatment of anorexia nervosa, what causes anorexia nervosa and prevalence of anorexia nervosa. Okay, let's talk about what is anorexia nervosa. Anorexia nervosa is serious and potentially life-threatening but treatable eating disorder. Okay, is a serious and potentially life-threatening disorder. It is characterized by extreme food restriction and an intense fear of gaining weight. अगर आरफिड डिसऑर्डर में फूड रिस्ट्रिक्शन थे तो वहां पे फियर नहीं था गेनिंग वेट का, लेकिन यहाँ पे गेनिंग वेट का फियर आ गया है। ये चीज डिफरेंट है। Treatment usually involves several strategies, including psychotherapy, nutritional counseling, and or hospitalization. Anorexia, formerly known as anorexia nervosa, is an eating disorder. Okay, people with anorexia limit the number of calories and the types of food they eat. Number of calories को limit कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे intense fear of gaining weight आ रहा है, and the types of food they eat इसको भी limit कर रहे हैं. Eventually they lose weight or cannot maintain an appropriate body weight based on their height, age, and stature and physical health. अपने BMI को अप्रोप्रिएट नहीं रख पाते हैं, इस वजह से अपने आप को इंटेंस फियर होता है इनको वेट गेन करने की वजह से, और इसी वजह से एनोरेक्सिया हो जाता है। अब न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आपको पूरी बॉडी में मिल पाएगी क्योंकि आप एक टाइप का फूड ही नहीं खा रहे हो और बार बार प्रॉब्लम आ रही है। दे मे एक्सरसाइज कंपल्सिवली एंड और पर्ज द फूड दे ईट थ्रू इंटेंशनल वॉमिटिंग। बार बार पर्ज भी कर सकते हैं, अपना खाना बाहर निकल सकते हैं इंटेंशनल वॉमिटिंग की वजह से, क्योंकि उनको इंटेंस एंजाइटी है वेन वेट की। And or misuse laxative. Individuals with anorexia also have distorted self image होती है of their body and intense fear of gaining weight। वहां पे distorted image होती है, intense fear of gaining weight हो जाता है, बार बार एंजाइटी होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे intense fear of gaining weight है। आप है नहीं मोटे, लेकिन आपको अब अपने मिरर में आपको देखेंगे तो डिस्टॉर्टेड इमेज आपको लगेगी कि आप मोटे हैं। आपका बॉडी बेसल बीएमआई, आपका बॉडी मास इंडेक्स सही नहीं है। इमोशनल एंड मेंटल साइंस ऑफ एनोरेक्सिया क्या है? इमोशनल एंड मेंटल साइंस ऑफ एनोरेक्सिया इंक्लूड हैविंग एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, being unable to realistically assess your body weight and shape, and having a distorted self image, वही मैंने बात करी पहले। having an obsessive interest in food, calories and dieting, food, calories and dieting में obsessive interest होगा। feeling overweight or fat even if you are weight, आपको आप अपने आप को फूड ग्रुप बी सेल्फ क्रिटिकल, अपने बारे में आप बार बार सोचोगे, क्रिटिकल रहेगा, थॉट्स रहेंगे। डिनाइंग द सीरियसनेस ऑफ योर लो बॉडी वेट एंड फूड रिस्ट्रिक्शन, आप बार डिनाई करोगे, सीरियसनेस करोगे आपका लो बॉडी वेट है कि नहीं है। फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन कंट्रोल, आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा कंट्रोल रहने का। फीलिंग इरिटेटेबल और डिप्रेस्ड, आप डिप्रेस्ड रहोगे। एक्सपीरियंस थॉट ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, आपका सेल्फ हार्म और सुसाइड के भी अटैक हो सकते हैं, थॉट्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है यहाँ पर, आप बार बार सोच रहे हो अपनी बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स उस हिसाब से आपका नहीं बन पा रहा है तो आपको सेल्फ हार्म और सुसाइड के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। बिहेवियरल साइंस ऑफ एनोरेक्सिया में क्या आता है? behavioral changes in eating habits or routines, such as eating foods in a certain order or rearranging foods in plate। आएगा ईटिंग फूड्स में डिफरेंट आएगा, या सर्टेन ऑर्डर, आप फूड प्लेट में आपका सर्टेन ऑर्डर रहेगा रीअरेंज करने का। अ सडन चेंज इन डाइटरी प्रेफरेंसेस सच एज एलिमिनेटिंग सर्टेन फूड टाइप्स और फूड ग्रुप्स, वही पहले भी बात करी, आप सर्टेन फूड टाइप्स को लिमिट करोगे क्योंकि आप अपने बॉडी वेट पे ज्यादा ध्यान दोगे, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान दोगे। Making frequent comments about feeling fat or overweight despite weight loss, आपका वेट लॉस भी रहा है तब भी आप अपने आप को फैट समझोगे। पर्जिंग थ्रू इंटेंशनल वॉमिटिंग और मिसयूजिंग लैक्सेटिव और डायरेटिक्स, आप अपने लैक्सेटिव और डायरेटिक्स का ज्यादा मिसयूज करेंगे। गोइंग टू रूम राइट आफ्टर ईटिंग, बार बार बाथरूम जाएंगे राइट आफ्टर ईटिंग। यूजिंग डाइट पिल्स और एपेटाइट सप्रेसेंट, आप डाइट पिल्स लेते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट लेते हैं।
कंपल्सिव एंड एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग और एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि आपको एंजाइटी है कि आप मोटे तो नहीं हो रहे हैं. Continuing to diet even when your weight is low for your sex, height, and stature, making meals for others but not yourself, wearing loose clothing and wearing layers to hide weight loss and stay from withdrawing from weight friends and social events. अगर आपको ये साइंस हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये आपको कहीं एनोरेक्सिया तो नहीं है. प्लीज गो अहेड एंड चेक विद द डॉक्टर. फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा. फिजिकल साइंस क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट वेट लॉस और सेवरल वीक्स और मंथ. सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है क्योंकि आप अपने फूड पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो. नॉट मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट बॉडी वेट बेस्ड ऑन योर हाइट, एज, सेक्स. आपका बॉडी वेट, बीएमआई मेंटेन नहीं हो रहा है. अनएक्सप्लेन्ड चेंज इन ग्रोथ कर्व और बॉडी मास इंडेक्स. अनएक्सप्लेन्ड चेंज हो रहा है भाई बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई में. Physical symptoms and anorexia that are side effects of starvation, malnutrition include dizziness or fainting. फिजिकल सिम्टम्स हैं ये डिजीनेस और पेंटिंग क्योंकि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा. फीलिंग टायर्ड, आप टायर्ड रहोगे, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है बॉडी में, आप अवॉइड कर रहे हैं कुछ फीड. स्लो हार्ट बीट, ब्रैडिकार्डिया, आपका स्लो हार्ट बीट हो जाएगी क्योंकि आपका क्या हो रहा है, बीएमआर भी कम हो रहा है. और इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है, अरिथमिया हो सकता है. लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, फोकस हो जाता है. फीलिंग कोल्ड ऑल द टाइम. एब्सेंट पीरियड्स, आपका पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है फीमेल में. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप हांफने भी लग सकते हो. ब्लोटिंग एंड अब्डोमिनल पेन भी हो सकती है. मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास क्योंकि प्रोटीन मिल नहीं रहा है सही से बॉडी में. ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स और थिनिंग ऑफ हेयर हो सकती है. पुअर बाउंड हेलन एंड फ्रीक्वेंट इलनेस. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है बॉडी में, क्योंकि आप कुछ प्रॉब्लम, आप कुछ फूड्स को अवॉइड ही कर रहे हो बिल्कुल. फूड टाइप का वर्ड, ब्लूइश और पर्पल कलरिंग हो सकती है आपके स्किन में. क्यों? क्योंकि आपको भाई न्यूट्रिशन वैल्यू मिल नहीं रही है. What causes anorexia? आपके causes क्या आ सकते हैं anorexia में? Factors that may be involved in developing anorexia include genetics causes भी. Research suggests that approximately 50 to 80% of the risk of developing an eating disorder is genetic. अगर आपके जीन्स में है, सिबलिंग्स में है, पेरेंट्स में है तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है. और 10 times more likely to develop an eating disorder. This suggests a genetic link. चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री में ऑल्सो प्ले अ रोल. अगर आपकी ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो उसमें भी आ सकती है. पर्टिकुलर चेंजेस टू ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सेरोटोनिन, डोपामिन व्हिच कैन अफेक्ट एपेटाइट, मूड एंड इंपल्स रेगुलेशन. अगर आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूड एनोरेक्सिया caused by people attempting to cope with overwhelming feelings and pain emotional by limiting food. अगर आपको सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या फिर आपको बुली किया गया है कि आप मोटे हो, तब ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया हो सकता है. एनवायरमेंट, कल्चर्स दैट आइडियलाइज अ बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी टाइप. जो कल्चर अवॉइड आपको आइडियलाइज करते हैं एक बॉडी टाइप को, यूजुअली थिन बॉडीज, कैन प्लेस अननेसेसरी प्रेशर ऑन पीपल टू अचीव अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड. पॉपुलर कल्चर एंड इमेजेस इन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग ऑफन इंक. जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे पतले होने का बहुत वो चल रहा है और रील बना के बॉडी मसल्स बनाने का, तो इससे भी एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है. Peer pressure, particularly for children and adolescent, peer pressure can be very powerful force. Experiencing teasing, bullying, or ridiculous because of experience or weight can be contribute to development of anorexia. ये भी हो सकता है. इमोशनल हेल्थ, अगर आपका खराब है, परफेक्शनल्स की आपके अंदर ज्यादा है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, डिफिकल्टी रिलेशनशिप है, तो इस वजह से भी एनोरेक्सिया हो सकता है. डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे आप एनोरेक्सिया को चेक करोगे? अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डायग्नोस अ पर्सन विद एनोरेक्सिया बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा लिस्टेड इन द डायग्नोस्टिक. डीएसएम-5 में कैसा है और आईसीडी में कैसा है? Restriction of calorie consumption leading to weight loss or failure to gain weight, resulting in significantly low body weight based on that person age, sex. वही आपका बीएमआर का इश्यू. ठीक है. Intense fear of gaining weight, आपका अंदर इंटेंस फियर है, एंजाइटी है. Having a distorted view of themselves and their condition. In other words, the individual is unable to realistically assess their body weight and shape and believes their appearance has strong influence of the self-worth and denies the medical seriousness of their thing. अब डिस्टॉर्टेड इमेज लोग अपने आप बना लेते हैं कि अगर पतले भी तो अपने आप को मोटा समझते हैं, और आपका बीएमआर सही भी है तब भी आपको, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सही भी तो तब भी अपने आप को मोटा समझते हैं. तो इसी वजह से प्रॉब्लम में एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है. ये डायग्नोसिस और टेस्ट है. इफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया प्रेजेंट, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल begin an evolution by performing a complete medical history
and examination. The provider or mental health professional will likely ask about the following tips: dietary history क्या है, exercise history क्या है, psychological history क्या है, body images क्या है, binging and purging frequency क्या है बंदे की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, मेंस्ट्रुअल स्टेटस क्या है पेशेंट का, मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, प्रायर ट्रीटमेंट क्या लिया है उसने। ठीक है। अब व्हाट टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोस और एक्सेस एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या टेस्ट करते हैं? टेस्ट टू रूल आउट वेट लॉस कॉजिंग इलनेस और टू असेस एनोरेक्सिया साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट ब्लड को चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के एल्बुमिन ब्लड टेस्ट, ईकेजी चेक कर रहे हैं, यूरिन एनालिसिस हो रहा है कि भाई बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ रहे नहीं, बॉडी डेंसिटी टेस्ट हो रहा है, केएफटी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थायराइड के फंक्शन टेस्ट होते हैं, विटामिन डी लेवल्स चेक होते हैं, pregnancy test is in people assigned female at birth or of child hearing age, यहाँ पे ये भी चेक होता है। हार्मोन टेस्ट ऑफ एविडेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इसमें हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, ये टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के लिए एनोरेक्सिया। ठीक है। अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? द बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रीटिंग एनोरेक्सिया इज हेल्पिंग द पर्सन रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट दैट दे हैव एन इलनेस। पहले चैलेंज होता है कि उन लोगों को समझाना कि उनको एनोरेक्सिया है भी कि नहीं है। अब द गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्सिया इंक्लूड स्टेबलाइजिंग वेट लॉस को स्टेबलाइज करना, बिगिनिंग न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन टू रिस्टोर वेट, लोगों को न्यूट्रिशन खाना देना पेशेंट को और उनका एक डाइट बनाना न्यूट्रिशन खाने का, एलिमिनेटिंग बिंज ईटिंग और पर्जिंग बिहेवियर, उनका बिंज ईटिंग और पर्जिंग बिहेवियर को हटाना, प्रॉब्लमेटिक ईटिंग पैटर्न्स को हटाना, ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज सच एज लो सेल्फ एस्टीम, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंजेस भी होने चाहिए। People with eating disorder, including anorexia, often have additional mental health condition, including depression, anxiety disorder, borderline personality disorder, obsessive compulsive disorder, substance, ये तो comorbidity में आ जाएंगे disorders। ठीक है। So अब treatment option will vary depending on the individuals. A person may receive treatments through residential care और patient care में भी हो सकता है, hospitalization भी हो सकता है। Treatment for anorexia most often involves a combination of the five फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। साइकोथेरेपी भी यूज होती है, मेडिकेशन भी यूज होती है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बाय डाइटिशियन के थ्रू, ग्रुप और फैमिली थेरेपी, आप अपनी फैमिली को भी समझा सकते हो कि इस पेशेंट पे ध्यान देना है। हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है पेशेंट का, अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है तो हम उनको न्यूट्रिशन दे सकते हैं ड्रिप की तरह। ठीक है। अब साइकोथेरेपी में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हो सकती है कि बॉडी को अपने एक्सेप्ट करें। सीबीटी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अपने बॉडी को बिहेवियर चेंज करने के लिए। कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी यूज रिफ्लेक्टिव एंड गाइडेंस सुपरविजन टू डेवलप अ कैपेबिलिटी ऑफ फोकसिंग ऑन मोर देन दैट वन थिंग एट अ टाइम। अब वन थिंग एट अ टाइम को कॉग्निटिव रिमेडिएशन थेरेपी उसके लिए यूज सकती है। डीबीटी हो सकती है आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। फैमिली बेस्ड थेरेपी, अगर आपके फैमिली और कल्चर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए फैमिली बेस्ड थेरेपी यूज कर सकते हैं कि आपका थॉट्स को चेंज करें, बॉडी वेट पे ज्यादा ध्यान ना दें, उस वजह से भी ये फैमिली बेस्ड थेरेपी यूज करते हैं। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, दिस थेरेपी इज एम्ड एट रिजॉल्विंग एन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है और रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आपको एनोरेक्सिया हो रहा है तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी हो सकती है। ये थेरेपीज यूज हो सकती हैं आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा को ठीक करने के लिए, दैट कैन बी द ट्रीटमेंट। So this is all about, and what is medication use हो सकता है आपका। Some healthcare providers may prescribe medications to help manage anxiety and depression, और often anxiety with anorexia, अगर आपको ज्यादा anxiety हो रही है तो आपको एंटी एंजाइटी पिल्स दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ओलेंजापिन ये दे सकते हैं, ज़ेप्रेक्सा दे सकते हैं, मे बी हेल्पफुल फॉर वेट गेन। ठीक है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में आप एक डाइटिशियन के पास जा सकते हैं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ले सकते हैं। न्यूट्रिशन काउंसलिंग स्ट्रेटजी टू हेल्प दैट ट्रीट एनोरेक्सिया दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: टीचिंग अ हेल्दी अप्रोच टू फूड एंड बॉडी वेट, helping restore normal eating patterns, teaching the importance of nutrition and balanced diet, restoring a healthy relationship with food and eating। आपको आपका डाइटिशियन ये सब चीजें बता सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग हो सकती है, teaching a healthy approach for food and gain weight, helping restore normal eating patterns, teaching the importance of nutrition and a balanced diet, restoring a healthy relationship with food and eating। ग्रुप और फैमिली थेरेपी, वही मैंने पहले ही बताया कि आपको फैमिली थेरेपी आपकी फैमिली को बता सकते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और हम इसके ट्रीटमेंट में सक्सेस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और आपके कल्चर में अगर कुछ थॉट्स हैं आपकी बॉडी इमेज को लेके तो उस थॉट्स को चेंज किया जा सकता है, ग्रुप और फैमिली थेरेपी में ये करते हैं। So this is all about anorexia nervosa. In my next video, I will talk about
bulimia nervosa. That is also an eating and feeding disorder. So thank you. And if you have any problems in this video, please comment so that I can change and work upon my videos. And if you have any requirement on my videos, please comment so that I can change in my videos. And I'm also working on other eating and feeding disorders. So please like and subscribe my channel. And we will talk about bulimia nervosa in my next video. Thank you.